Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SPCGC Ajmer. This is paper first of BA part first, Foundations of Political Science, and today we will talk about sovereignty, our new chapter. So sovereignty is one of the most important concepts of political science, and the word sovereignty is derived from the Latin word superaneus. That's meaning is supreme or paramount. And next one is meaning of sovereignty. In every full-fledged or independent state, there is an ultimate authority, an authority from which there is no appeal. And third one is kinds of sovereignty, or two aspects of sovereignty are there. First one is internal, second one is external. So let's see what is the meaning of these aspects. Internal sovereignty means some persons, assembly of group of persons in every independent state have the final legal authority to command and enforce obedience. This sovereignty exercises its absolute authority over all individuals or associations of the individuals within the state. And by external sovereignty, we mean that this state is subject to no other authority and is independent of any compulsion on the part of other states. Every independent state reserves the authority to renounce trade treaties and to enter into military agreements. This is the external sovereignty. Thus, by external sovereignty, we mean that every state is independent of other states. Next one is characteristics of sovereignty. So there are some characteristics of sovereignty. So let's see one by one. What are the features of sovereignty? First one is absoluteness, and sovereignty is absolute as well as unlimited. So there is no power on the earth which can bind it, and it has two aspects we have discussed earlier, that is external and internal. And the sovereign is entitled to do whatsoever he likes, and sovereignty is subject to none. Next one is universality or all comprehensiveness. The state is all comprehensive and the sovereign power is universally applicable. Every individual and every association of individual is subject to the sovereignty of the state. No association or group of individuals, however rich or powerful it may be, can resist or disobey the sovereign authority. Next one is inalienability. It is another characteristic of sovereignty. So it means that the state cannot part with its sovereignty. In other words, we can say that the sovereign does not remain the sovereign or the sovereign state if he or the state transfers his or its sovereignty to any other person or any other state. Sovereignty is the life and soul of the state, and it cannot be alienated without destroying the state itself. Next one is permanence or perpetuity. So sovereignty lasts as long as an independent state lasts, and the death of the king, the overthrow of the government, and the abdication of power does not lead to the destruction of the sovereignty. Last one is indivisibility. So this is another feature of sovereignty. It is a logical deduction from its absoluteness, and according to Gattel, if sovereignty is no absolute, no state exists. If sovereignty is divided, more than one state exists. Certain pluralists attach this point of view. They would divide sovereignty between the state and the other groups or associations within the state, ministering to the different interests of a person. So when we will talk about the pluralists, or we will discuss about this ideology, that is pluralism, in our next or in our separate video. So today we have talked about the sovereignty. आज हम लोग बात कर रहे हैं संप्रभुता के बारे में, जो कि राजनीति विज्ञान के हमारे सब्जेक्ट की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो ये जो संप्रभुता का वर्ड है, इंग्लिश वर्ड सोवरेनिटी है, ये लैटिन वर्ड सुपर एनस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च, सुप्रीम और पैरामाउंट। तो यहाँ पर संप्रभुता का मतलब आ जाता है, संप्रभुता का मतलब होता है एक राज्य
या एक ऐसी सत्ता जिसके जो सर्वोच्च सत्ता है और जिसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है और जिसके निर्णय होते हैं वो सभी पर बाध्यकारी होते हैं। तो ये इसका अर्थ है एक राज्य या उसकी जो सर्वोच्च सत्ता है उसे हम लोग सॉवरेनिटी कहते हैं, सुप्रीम पावर दैट्स मीन सॉवरेनिटी। नेक्स्ट आ जाता है काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी, आ जाता है संप्रभुता के प्रकार आ जाते हैं। दो प्रकार होते हैं इसके, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ होता है एक राज्य के भीतर, I am not talking about outside. I am talking about the within the territory of state. तो एक राज्य के भीतर जितने नागरिक हैं, संघ हैं, समुदाय हैं, संस्थाएं हैं, वे सभी राज्य की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्यकारी हैं। कोई भी उसे डिनाई नहीं कर सकता है और जो कोई उसे डिनाई करता है उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब होता है, बाहरी संप्रभुता का मतलब होता है कि एक राज्य इस बात के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वह दूसरे राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करे, संधि करे, युद्ध करे, जो भी उसे वैदेशिक संबंध अपने निर्धारित करने हैं वह इस बात के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और कोई भी उसे इस बात के लिए निर्देशित नहीं कर सकता है कि वह अन्य राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध रखे। तो ये आ जाता है आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। इसके बाद में आ जाता है संप्रभुता की कुछ विशेषताएं। पहला आ जाता है कि जो संप्रभुता की प्रथम विशेषता है वह यह है कि वह एब्सोल्यूट है, निरंकुश है और असीमित है और कोई भी ऐसे पावर नहीं है जो उसके ऊपर जो उसे अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर सके, जिसके प्रति वो लायबल हो। और यहाँ पर भी दो प्रकार इसके आ जाते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं। और नेक्स्ट इसका आ जाता है यूनिवर्सैलिटी और ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब सार्वभौमिकता या इसे हम लोग सर्वव्यापकता भी कहते हैं। तो जो राज्य है वह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है एंड जो उसकी सॉवरेनिटी है वह यूनिवर्सली विश्वव्यापी रूप से एप्लीकेबल है और हर व्यक्ति और हर एसोसिएशन है वह अपनी जो राज्य की संप्रभु शक्ति है उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य है और कोई भी अपनी जो सॉवरेन अथॉरिटी है, सर्वोच्च सत्ता है, उसकी आज्ञा का पालन करने का से मना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इनएलिएनेबिलिटी, मतलब जो संप्रभुता है उसे राज्य से अलग नहीं किया जा सकता है। राज्य से अलग करना इसका अर्थ है कि हमने जो संप्रभु शक्ति है उसको ही हमने नष्ट कर दिया है। इसलिए जो संप्रभु शक्ति है वो ना तो राज्य के पास से ख़त्म की जा सकती है और ना ही जो एक राज्य है वह किसी जो अदर अपनी सॉवरेनिटी है उसको एनी अदर पर्सन को या एनी अदर स्टेट को वो उससे ट्रांसफ़र कर सकता है। इस प्रकार जो संप्रभुता है वह एक राज्य की लाइफ और उसकी आत्मा है और जो राज्य है वो खुद को नष्ट किए बिना उसको अपने से अलग नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट आ जाता है इंडिविजिबिलिटी, अविभाज्यता है। तो ये जो राज्य का जो संप्रभु शक्ति की विशेषता है एब्सोल्यूटनेस, उसी का एक परिणाम है। और जो संप्रभु शक्ति है उसे राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता है, संप्रभु शक्ति को ही डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो इंडिविजिबिलिटी होती है ये संप्रभुता का जीवन है, उसका लाइफ ब्लड है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो गेटल है उन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पर कोटेशन दी है। इफ़ सॉवरेनिटी इज़ नॉट एब्सोल्यूट नो स्टेट एग्जिस्ट, इफ़ सॉवरेनिटी इज़ डिवाइडेड मोर देन वन स्टेट एग्जिस्ट। तो इसका अर्थ है कि यदि हम लोग संप्रभुता को विभाजित कर देते हैं तो इसका अर्थ है कि हमने एक से अधिक राज्यों की हमने रचना कर दी है। इसके साथ में यहाँ पर हमारे पास में एक विचारधारा आ जाती है जिसे हम लोग बहुलवादी विचारधारा कहते हैं, या हमारे पास में बहुलवादी विचारक आ जाते हैं जो कि इस संप्रभुता का विरोध करते हैं। उनका ये मानना है कि जो संप्रभु शक्ति होती है वह राज्य में और राज्य के अंतर्गत जितने समूह हैं, संघ हैं, उन सब के अंतर्गत विभाजित होती है। तो ये जो बहुलवादी विचारधारा है इसे हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।